Hallelujah. Thank you. Lift your hands to the Lord. Thank you, Jesus. Sing in an unknown tongue. Libre dalla tangondana moshe deleri arake. Lubri dalla calta la baldo la borobontono. Zibehel diri ara calta la baltaraba. Everybody sing in an unknown tongue. Libre dalia calta la baldo rodontona maldere di ara fende. Zobili biri di ara calta la balda la bara calta la baldo la bara bakara bishandalaria. I can sense the presence of angels in this house. Ripa kelde de bel diri di araka. Uraba shenderi di arada kelde le baldu ruburu kolto le babo. Lobiri arada kendana mando nado. Ziberi alle ridel de di arada kalto la bambo no namaro kondono. Libre la kalto la baldu rabo. Libre di halal da la boseri arada kolto la baldu na menderi arada ke. Ariallandana makolta la baldo la bara 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 karabishendelerio na bakorabishandaria. Hallelujah, hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. महिमा और आदर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं, महिमा और आदर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। तू शक्तिमान अद्भुत कार्य करता है, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू शक्तिमान अद्भुत कार्य करता है, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। ओ महिमा और Everybody sing. करते हुए हाथ उठा के, अपने हाथ उठा कर हम आराधना करते हैं, महिमा और आदर करते हुए अपने हाथ उठा कर हम आराधना करते हैं। तू शक्तिमान अद्भुत कार्य करता है, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू शक्तिमान अद्भुत कार्य करता है, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। For you deserve the glory and the honor, Lord, we lift our hands in worship and we bless your holy name. You deserve the glory, all the glory, Lord, and the honor. Lord, we lift our hands in worship and we bless your holy. Tell him, for you are great, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one else like you. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one else like you. For you deserve the glory, softly, and the honor. Lord, we lift our hands in worship and we bless your holy name.
You deserve the glory and the honor. Yes, Master, you alone. Lord, we lift our hands in worship and we bless your holy. With hands uplifted, you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. तू शक्तिमान अद्भुत कार्य करता है, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं. तू शक्तिमान अद्भुत कार्य करता है, यीशु राजा. तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं. Softly. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. And Lord, this evening, और इस शाम को प्रभु, we as a church, Abba, we vow that we will give you all the glory. हम एक चर्च के नाई हम आपसे वचन देते हैं कि हम आपको ही महिमा देंगे, That we will give you the honor. हम आपको आदर देंगे. Thank you that you have enlightened the eyes of our understanding to know your word, Lord. धन्यवाद करते कि आपने हमारी आत्मिक आंखों को प्रकाशित किया है कि हम आपके वचन को जाने. Thank you for divine utterance, Abba. धन्यवाद करते देवीय बातों के लिए जो आपने हमें दी है. Thank you that your word will never return void, Father. कि आपका वचन कभी वापस खाली हाथ नहीं लौटेगा. For your word is settled in heaven forever, Lord. कि आपका वचन हमेशा के लिए स्वर्ग में स्थिर हुआ है. We will be careful, Master, not to lift up any man. हम ध्यान देंगे प्रभु कि हम किसी मनुष्य को बड़ा नहीं करेंगे, but only your son Jesus. लेकिन केवल आपके पुत्र यीशु मसीह को हम बड़ा करेंगे. Be glorified, be hallowed in this place, Lord. इस जगह पर आपको महिमा मिले प्रभु, In Jesus' name. यीशु के नाम से. Amen. Amen. Hallelujah. You may be seated. Thank you, Lord. Thank you, बैठ सकते choir. हैं. Thank you, son. Thank you so much. How many are glad to be in the house of God? कितने लोग खुश है कि वो प्रभु के घर में है? Hallelujah. हालेलुया.
Way back in 2013, I suddenly remembered. मुझे अचानक से याद आया कि 2013 में 13th of August, my biological father had gone to be with the Lord. 13 अगस्त को मेरे जो शारीरिक पिता है वो प्रभु के साथ रहने को गए। And that was on the 13th of August. 13 अगस्त की बात है ये। And 14th of August, we had the burial. और 14 अगस्त को हमने उनका दफनाया। And 15th of August, I was supposed to preach. और 15 अगस्त को मुझे प्रचार करना था। Not an easy thing. ये कोई आसान बात नहीं थी। And the crew team, the musicians, the worship leaders who were there with me, और जो क्वायर की जो टीम थे जो मेरे साथ थे आराधना करने के लिए, when they got the news that 13th my dad went to be with the Lord, so they thought perhaps he will cancel the meeting. तो उन्हें जब पता चला कि 13 अगस्त को मेरे पिताजी का देहांत हुआ, तो उनको लगा कि मैं मीटिंग को कैंसिल करूंगा। I told the team, और मैंने टीम से कहा, I told them that, look guys, we are not cancelling the meeting. देखो हम इस मीटिंग को कैंसिल नहीं करेंगे, We'll still preach. हम फिर भी प्रचार करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Because Jesus is more important to me than anybody else on the earth. क्योंकि मुझे यीशु सबसे ज्यादा इस धरती पर प्रिय है। Hallelujah. हालेलुया। And so we had an awesome meeting that day. और उस दिन हमारी बहुत अच्छी सभा हुई। The hall was packed. और पूरा हॉल भरा हुआ था। And the moment I got up on the platform to preach, और जिस क्षण मैं उस प्लेटफॉर्म पर प्रचार करने के लिए खड़ा हुआ, I felt the anointing just coming upon me in waves, just like that. और मुझे उस समय प्रभु की अभिषेक एक वेव के समान मुझे महसूस हुआ। And after the meeting, और सभा के बाद में I still remember that I prayed for healing. मुझे याद है कि मैंने चंगाई के लिए प्रार्थना किया था। But that night we didn't take up any testimonies. I don't know why. और उस रात को हमने कोई गवाहियों को नहीं लिया, मुझे नहीं पता क्यों। So I started getting news after 1 week. और एक हफ्ते बाद मुझे खबर मिलना शुरू हुई। Because some of them who were there in the meeting, they had got their relatives in the meeting. और मुझे पता चला कि वहाँ पर जो लोग थे उसी समय उस सभा में चंगे हुए। And this relative, when I went to their house, they were telling me that you don't know, you have no clue what happened in the meeting. और उन्होंने मुझे बताया कि आपको पता नहीं कि सभा में क्या हुआ। So I said, I don't know. The only thing I know that I prayed for people to get healed, and then I gave the altar call for people to give their hearts to Jesus. और मैंने उनसे कहा कि मुझे पता नहीं सभा में क्या, सभा के बाद क्या हुआ, क्योंकि मैंने केवल प्रचार किया और लोगों को यीशु को अपना दिल देने के लिए, अपना जीवन देने के लिए कहा। So those people, they started telling me what happened to the relatives. और लोगों ने मुझे बताना शुरू किया कि उनके जो संबंध के लोग हैं उनके साथ क्या होना शुरू हुआ था। There was a very old lady in that meeting who had cataract in her eyes. और एक ऐसी स्त्री थी जिनके आंखों में कैटरैक्ट था। So when we were praying, और जब हम प्रार्थना कर रहे थे, she felt a warm sensation all over her eyes. और उनको उस स्त्री को उसके आंखों में गर्माहट महसूस हुई। And that cataract from her eyes just fell on the floor, just like that. और उनकी आंखों से वो कैटरैक्ट नीचे गिर गया। With no operation. कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। The vision of this eye became very clear. और उनकी आंखों की दृष्टि एकदम सही हो गई। And then there was one girl in that meeting who had her eardrums damaged. और एक लड़की थी वहाँ पर जिनके कानों में तकलीफ थी। She could not hear anything from the ear. और उनके वो कानों से कुछ भी सुन नहीं पाती थी। Only one ear was open. उनका केवल एक कान खुला हुआ था। So when we were worshiping the Lord and when I was rebuking sickness, और जब हम परमेश्वर की आराधना कर रहे थे और बीमारियों को हम आज्ञा दे रहे थे निकलने की, she felt some sensation in her ears and she heard that voice. और उस लड़की ने कुछ ऐसे गर्माहट को महसूस किया और उनको एकदम से अचानक से आवाज आया। That ear, that the eardrums was damaged, God repaired it there and there itself, and she could hear very, very clearly. और उस लड़के के जिसके कान के पर्दे काम नहीं करते, फटे गए थे, परमेश्वर ने उसको स्पर्श किया और उस क्षण से वो सुनना उसने शुरू किया। You know, I'm glad that we didn't take testimonies. मैं धन्यवादित हूँ कि हम गवाहियों को नहीं लेते। Otherwise, people would have thought that I am the healer. क्योंकि नहीं तो लोगों को लगता कि मैं चंगा करने वाला हूँ। I am not the healer. मैं चंगा करने वाला नहीं हूँ। There is only one healer. केवल एक ही है जो चंगा करता है। His name is Jesus Christ, the Son of the Living God. उसका नाम है यीशु मसीह। Hallelujah. हालेलुया। All right. So we have been learning a lot of things about faith. हम विश्वास के विषय में सुन रहे हैं। The scripture says faith comes by hearing and hearing by the word of God.
और हम सुनते हैं कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। Now, if you look at the original text, it says, "Faith cometh by hearing, and hearing by the word of Christos." और ओरिजिनल भाषा में ऐसा है कि विश्वास सुनना और सुनना मसीह से होता है। So, if you want faith, you got to hear the word of God. Without hearing the word of God, you cannot get faith. आपको विश्वास के लिए वचन मसीह के वचन को सुनना बहुत आवश्यक है। And what is faith? और विश्वास क्या है? The scripture gives us a definition. वचन हमें उसकी परिभाषा बताता है। Faith is the substance of things hoped for, विश्वास आशा की गई वस्तु का निश्चय है, the evidence of things not seen. और जो चीजें दिखाई नहीं देती उसका परिमाण है। Faith is the substance of things hoped for, विश्वास आशा की गई वस्तु का निश्चय है, the evidence of things not seen. और जो चीजें दिखाई नहीं देता उसका प्रमाण है। In other words, faith is a title deed. उसका मतलब है कि जो विश्वास है वो एक टाइटल डीड के समान है। Now, I believe with all of my heart that the Lord is going to bless us, and He's already blessed us in His eyes with acres of land for the church. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने इस चर्च के लिए एकड़ का जगह हमको दी है। And I, as a part of a church, you see these papers? आप इस पेपर्स को देख पा रहे हो? I already see the papers of the land in my hand. आमेन। मैं हमारे जगह के जो पेपर्स है मैं मेरे हाथों में देख पा रहा हूँ। Saints, we are speaking a faith language. मैं विश्वास की भाषा को हम बात कर रहे हैं। Faith has a language. विश्वास की एक भाषा होती है। And if you don't speak it out, it is zero. अगर हम बोलेंगे नहीं तो उसका वो शून्य हो जाती है। The scripture says faith speaks. वचन कहता है कि विश्वास बोलता है। Say it with me. Faith speaks. कहिए मेरे साथ, विश्वास बोलता है। If there is faith in your heart, it will come out of your mouth. अगर विश्वास आपके दिल में है तो आपके मुख से बाहर निकलेगा। If there is unbelief in your heart, it will still come out of your mouth. अगर आपके मन में अविश्वास है तो वो अविश्वास आपके मुख से बाहर निकलेगा। So the scripture says that faith speaks. वचन कहता है कि विश्वास बोलता है। Faith is a title deed. विश्वास है वो कागज पत्र के समान है। So I have by faith the church is saying that we have the papers of the land. विश्वास से हम देख रहे हैं कि हमारे पास चर्च की जगह के पेपर्स हैं। Saints, I'm waving it to you all. Hallelujah. मैं इसको लहरा रहा हूँ आपकी ओर। Come on, we are speaking faith language. हम विश्वास की भाषा का बोल रहे हैं। देखो, जब तक बोलेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। If you don't speak, it will not happen. अगर होना चाहिए तो बोलिए बोलिए बोलिए। If you think it should happen, then speak. Faith speaks. विश्वास बोलता है। Faith बात करता है। Faith speaks. We have acres of land. हमारे पास एकड़ों की जमीन है। We have acres of land. हमारे पास एकड़ों की जमीन है। I'll tell you one thing. The land will be sponsored. I'm telling you. मैं कहता हूँ कि जो जमीन है वो हमें कोई देगा। The earth is the Lord's and the fullness thereof. ये धरती परमेश्वर की और इसकी बहुतायत भी परमेश्वर की है। And God is not going to give it to us because we are praying for it, but because of His great mercies. परमेश्वर हमको वो इसलिए नहीं देगा क्योंकि हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो उसकी दया के कारण वो हमें देगा। So I'm holding the papers of the land in my hand. तो इसलिए मैं जो इस जगह के पेपर्स को मेरे हाथों में पकड़ के हूँ। And I am not waving it before you all. I'm waving it before the Lord Jesus मैं Christ. आपके सामने इसको लहरा नहीं रहा, लेकिन मैं परमेश्वर के सामने उसको लहरा रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। I'm waving it before the Master. मैं उसको परमेश्वर के सामने लहरा रहा हूँ। He's seeing my faith and your faith. वो मेरे और आपके विश्वास को देख रहा है। And without faith, it is impossible to please God. और बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। Faith has a language. विश्वास की एक भाषा है। We speak it out. हम उसे बोलते हैं। If we don't speak it out, it is dormant. अगर हम उसको बोलते नहीं तो वो किसी काम की नहीं है। Same thing with other areas of our life. और वैसे हर एक हमारे जीवन के अलग अलग भागों के विषय में है। Hallelujah. हालेलुया। Now remember, when the Lord, the scripture says in Mark chapter 11 verse 23 and 24. मरकुस उसका 11 अध्याय उसका 22 और 23। The scripture says the Lord was very hungry. वचन कहता है कि परमेश्वर काफी भूखे थे। And He saw a fig tree from far. और उसने अंजीर के पेड़ को बहुत दूर से देखा। And He saw leaves on it. और उसने पत्ते देखे वहां पर। And the scripture says that He came happily that He might find something on it. और वहां कहता है कि यीशु मसीह खुश होकर उस पेड़ के पास आया कि वो देखे कि वहां पर कुछ तो मुझे खाने को मिलेगा। And He found nothing. और उसको वहां कुछ नहीं मिला। And the Lord looked at the fig tree. और यीशु ने उस अंजीर के पेड़ की ओर देखा। लॉर्ड शांत में बैठा, बात किया।
परमेश्वर लॉर्ड डिड नॉट स्टे साइलेंट देयर बट ही स्पोक. अगर कोई चीजें आपसे बात कर रही है ना, तुरंत उससे बात करो. If something is speaking to you, then you need to speak to those things. If people will say, अरे all the lands are occupied, लॉर्ड है ना 2-3 बिल्डिंग्स को लात मार के लैंड खड़ा करेगा हम लोगों के लिए. अगर लोग कह रहे हैं कि बहुत सारी जगह वहां पर कोई जगह नहीं है, तो परमेश्वर 2-3 बिल्डिंगों को हिलाएंगे और आपके लिए जगह को तैयार करेंगे. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. As it is the jail that Paul lived, it had become a playground anyway. और जेल जो थी पौलुस के लिए वो एक प्लेग्राउंड खेलने की जगह हो गई. They were only praising God. वो कल परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे. You know, praise is the language of faith. आपको पता है विश्वास जो स्तुति है वो विश्वास की भाषा है. So the Lord came close to the fig tree. और जब यीशु मसीह उस अंजीर के पेड़ की ओर आए, All right, and then the Lord spoke to it. और यीशु ने उस पेड़ से कहा, Nobody will eat the fruit from hereafter. तेरे में से अब कोई भी फल नहीं खाएगा. And the scripture says, and the disciples, और वचन कहता है कि दोबारा शिष्यों बोलिए. ने और क्या disciples किया? ने क्या किया? और शिष्यों ने क्या किया? सुना. उन्होंने सुना. They heard. That means the Lord spoke audibly. और परमेश्वर ने जोर से बात किया. ऐसा मन में नहीं बोला करके ऐसे देखा. No, he God didn't did do not that. speak in his mind. He spoke it audibly. उसने बात किया. Speaking audibly is important. परमेश्वर ने जो सुन सकते हैं उस प्रकार से बात किया, वो बहुत महत्वपूर्ण है. And the word is very clear. It says the disciples heard it. और वचन कहता है कि शिष्यों ने सुना. लॉर्ड ने पीछे पलट के देखा, नहीं कुछ हो रहा नहीं, क्या हो गया? यीशु मसीह ने Jesus didn't turn around and thought that nothing is happening. You know, the fig tree, if it has one of the characteristics of fig tree, before it brings forth the fruit, it has leaves on it. और जो अंजीर का पेड़ है उसकी खासियत यह है कि फल आने से पहले उसके पास पत्ते आते हैं. And the word declares that Jesus saw leaves on it. That means if the leaves are there, the figs have to be there. और उसका मतलब है कि यीशु ने वचन कहता है कि यीशु ने वहाँ पत्ते देखे, उसका मतलब है कि पत्ते हैं तो फल होना चाहिए था. Jesus was calling that fig tree, you are pervert. और यीशु मसीह उस अंजीर के पेड़ से कह रहे थे कि तू भ्रष्ट है. देखो ऐसा बनाया क्या मैंने? Did I make you like this? If I have not made you like this, you are not supposed to behave like that. अगर मैं तुझे ऐसा नहीं बनाया तो तूने वैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए. अपने बॉडी में अगर कुछ एलिमेंट्स होता है ना, लॉर्ड ने ऐसा बनाया नहीं. He has made us fit, fine, strong and healthy. अगर आपके शरीर में आपको कुछ बीमारियां देखते हैं तो वो परमेश्वर ने आपको वैसा नहीं बनाया है. परमेश्वर ने आपको अच्छे स्वास्थ्य के साथ में बनाया है. So if our body misbehaves, you got to tell it, body behave yourself. ऐसा नहीं करने का. अगर आपका शरीर आपके साथ में सही से बर्ताव नहीं करता तो आपको आपके शरीर के साथ में बोलना है कि तू सही से बर्ताव कर. And the word declares when they came back in the morning. और वचन कहता है कि दूसरी सुबह जब वो आए, You don't tell me that the Lord must have not seen it dried up from the roots. आप मुझे बता नहीं सकते कि यीशु मसीह को पता नहीं हुआ कि वो जड़ से सूख चुका है. The Lord didn't show any excitement. Excitement दिखाया नहीं Lord ने. यीशु मसीह ऐसा खुश नहीं हुआ कि अरे हाँ ये हो गया, बहुत बड़ा चमत्कार हुआ. ऐसा यीशु मसीह खुश नहीं हुआ. उल्टा पीटर एक्साइटेड था. उससे ज्यादा पतरस बहुत ज्यादा खुश था. Peter started shaking the Lord. और पतरस खुश होकर यीशु मसीह को हिलाने लगा. Lord, the fig tree that you cursed is withered away. यीशु मसीह तूने जो उस अंजीर के पेड़ को श्राप दिया था वो सूख गया है. जीसस ने ऐसा नहीं किया. अरे पीटर हाई फाई. अरे हो गया ना, मेरे को नहीं मानता होने वाला करके. Jesus knew it is going to happen. So the Lord didn't tell Peter, मेरे को नहीं मानता करके होने वाला है. मैं भी देख रहा था होएंगे क्या पता नहीं, देखते हैं. Jesus didn't tell Peter that okay, I did not know it's going to happen. God's word is truth. ये परमेश्वर का वचन सत्य है. Let every man be a liar, but God alone is truth. हर एक मनुष्य झूठा लेकिन परमेश्वर इकलौता सच्चा है. The word that goes out of his mouth will not return unto us void. जो वचन हमारे परमेश्वर के मुख से निकलता है वो खाली हाथ वापस नहीं लौटेगा. Hallelujah. हालेलुया. So the fig tree dried up from the roots. तो जो अंजीर का पेड़ है वो जड़ों से सूख गया. The Lord is teaching us how to exercise your faith. परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं कि हम हमारे विश्वास का इस्तेमाल, उसका उपयोग कैसे करें. Saints, listen, you know, if we have faith, but if we don't exercise it, it is still dormant. अगर हमारे पास विश्वास है लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करें तो वो उसका कोई काम नहीं है. The Lord didn't give us a tongue or a mouth only to eat chicken biryani. परमेश्वर ने हमें मुख और जीभ चिकन बिरयानी खाने के लिए नहीं दी है. And to increase our weight.
और हमारे वजन को बढ़ाने के लिए नहीं दी है। No, He gave us a tongue and a mouth so that we could chart the course of our life. उसने हमें ये मुख और जबान इसलिए दी है कि हमारे जीवन के दिशा को हम निर्धारित करें। You know, the word of God should always be spoken against adverse situation. परमेश्वर का वचन हमेशा विपरीत परिस्थिति में बोला जाना चाहिए। सिंपल चीज तो क्या कोई भी करेगा, इट हैज टू बी एडवर्स, तब जाके फटका। अगर सीधी सी चीज है तो कोई भी बात करेगा, लेकिन अगर विपरीत परिस्थिति है तो उसके विश्वास के वचन बोले जाने चाहिए। Jesus always spoke to adverse things, always adverse situation. यीशु मसीह ने हमेशा विपरीत परिस्थितियों के साथ में बात की। He spoke to the fig tree. उसने अंजीर के पेड़ से बात किया। He spoke to Lazarus' body to come out. उसने लाजर के शरीर से बात किया। He spoke to the winds and the sea. उसने हवा से बात किया। उसने समुद्र से बात किया। Every time Jesus spoke, he spoke against all things that were adverse. और जब कभी यीशु ने बात किया तब परिस्थितियां विपरीत थी। And the Bible declares, as he is, so are we in this world. और वचन कहता है कि जैसा वो है वैसा हम भी है इस संसार में। And the master said that the things which I do, you will also do, and greater things that you will do. और वचन कहता है कि जो चीजें यीशु मसीह ने की वैसी चीजें और उससे कहीं बढ़कर चीजें हम भी करेंगे। Saint says with me, I have the faith of God in me. कहिए कि मेरे पास परमेश्वर का विश्वास है। See, listen, if you are telling me that you don't have faith, you get born again today. अगर आप मुझसे कह रहे हो कि आपके पास विश्वास नहीं है तो आज आप नया जन्म पाइए। Because the scripture says, God has dealt to every man the measure of faith. वचन कहता है कि परमेश्वर ने एक परिमाण के हिसाब से हम सबको उसका विश्वास दिया है। Because if you are born again, you are born by the faith of the Son of God. अगर आपका नया जन्म हुआ है तो आपका नया जन्म उस मसीह के विश्वास के द्वारा हुआ है। Wow, hallelujah. Hallelujah. See, the scripture says that, listen saints, we have जो अपने अंदर जो faith जो deposit किया गया है ना, वो human faith नहीं है, वो Son of God का faith है. The faith that we have inside of us is the faith of Son of God. The only thing is like we got to have a knowledge about it that it is there. हमको ये जानना होगा कि वो विश्वास परमेश्वर के पुत्र का विश्वास हमारे अंदर है। It's like how many have seen their kidneys? कितने लोगों ने किडनी को देखा है? How many have seen their heart? कितने लोगों ने उनके हार्ट को देखा है? किडनी कितने लोगों ने देखा? हाथ ऊपर कर रहे लोग। क्या चीर फाड़ किया था क्या? Okay. Hallelujah. Okay. You know, the Lord has a sense of humor. आपको पता है कि प्रभु मजाक भी करते हैं। Jesus Lord अपने प्रभु यीशु मसीह में सबसे ज्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर है। यीशु मसीह के पास सबसे ज्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर है। Alright, so I have not seen my heart, you have not seen your heart. आपने और मैंने हमारे दिल को नहीं देखा है। But how do we know it's there? हमको कैसे पता कि वो वहाँ है? Because we have knowledge that there is something called as a heart. क्योंकि हमें वो ज्ञान है कि कुछ तो चीज है जो दिल करके होती है वो हमारे अंदर है। The scripture says that you already have the faith of the Son of God in you. वचन कहता है कि हमारे पास परमेश्वर के पुत्र का विश्वास हमारे अंदर है। Say, I have the faith of the Son of God in me. कहिए कि मेरे पास परमेश्वर के पुत्र का विश्वास है। You know, I used to always wonder that why did Jesus say that we'll do greater works than him? यीशु मसीह ने क्यों कहा कि हम उससे भी बड़े कामों को करेंगे? To do greater works than him, we got to have the same faith that Jesus had. अगर हमें बड़े काम यीशु मसीह से भी बड़े काम करने हैं, उसका मतलब है कि हमारे पास यीशु मसीह का विश्वास भी हमारे पास होना चाहिए। And the word declares that we have the faith of the Son of God in us. और वचन कहता है कि हमारे पास परमेश्वर के पुत्र का विश्वास है। God is giving us this knowledge that we have the faith of the Son of God in us. परमेश्वर हमें ये ज्ञान दे रहा है कि हमारे पास परमेश्वर के पुत्र का विश्वास है। The reason why we are not experiencing a lot of things is because we don't exercise it. हम बहुत सारी चीजों को हम होते हुए नहीं देख रहे क्योंकि हम उस विश्वास का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। How do I exercise it? By speaking it out audibly. हम उसका इस्तेमाल उस विश्वास का इस्तेमाल कैसे करेंगे कि हम जोर से उसकी घोषणा करेंगे। Now, if you look at the book of Romans chapter 10. अगर हम देखेंगे रोमियो उसका 10वां अध्याय, Romans chapter 10 verse 6. रोमियो 10वां अध्याय उसका 6वां वचन। Read it for me. रोमियो 10 उसका 6, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वह यो कहती है, तू अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुए में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। Okay. Now, verse 6 says, but the righteousness which is of faith, what does it do? Speaks. वचन 6 कहता है कि जो धार्मिकता विश्वास से है वो कहती है, वो बोलती है। मसीहा का जीवन है ना, वो गूंगे लोगों का जीवन नहीं है, मैं बोल रहा हूं। The life of Christ is not of the dumb people. मसीहा के जीवन में बोल बच्चन चाहिए, बोल बच्चन। Hallelujah. Amen. You got to speak. हमें बोलना होगा।
Say, I have the faith of the Son of God. कहिए कि मेरे पास परमेश्वर के पुत्र का विश्वास है। You know, the moment we declare it, it will come into manifestation. जिस क्षण आप उसकी घोषणा करोगे वो प्रकट होगा। Say, I have the faith of the Son of God. कहिए कि मेरे पास परमेश्वर के पुत्र का विश्वास है। I have the faith of the Son of God. मेरे पास परमेश्वर के पुत्र का विश्वास है। I have the faith of the Son of God. मेरे पास परमेश्वर के पुत्र का विश्वास है। And I'm going to put it to work. और मैं उसको काम में लाऊंगा। I'm going to put it to work. मैं उसको काम में लाऊंगा And I'm going to get results. और मैं उससे फलों को देखूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Speak to that loan and speak to its roots and command it to wither in the name of Jesus. उसकी जड़ों से कहिए कि सूख जाए। Hallelujah. हालेलुया। All right, so then if you look at Mark chapter 5, अगर हम देखेंगे मरकुस उसका 5वां अध्याय, from verse 25 it says, and there was a certain woman which had an issue of blood, वहां पर रक्त बहने वाली स्त्री के विषय में कहा गया है। and she had spent all that she had. और उस स्त्री ने उसके पास जो कुछ था वो उसने व्यर्थ कर दिया, गवा दिया। But she did not grow better, but rather grew worse. लेकिन वो अच्छी नहीं हुई, लेकिन उसकी तबीयत और खराब हो गई। When she heard about, लेकिन जब उसने किसके बारे में सुना? saints, one more time, she heard about, उसने किसके बारे में सुना? did she hear about Catherine Coleman क्या उसने कैथरीन कोलमन के बारे में सुना or about Benny Hinn? या बेनिन के विषय में सुना? She heard about, उसने that किसके विषय में means, सुना? that means she heard about Jesus means she heard the word. उसका मतलब है कि उसने यीशु के विषय में सुना। उसका मतलब है कि उसने वचन के विषय में सुना, वचन को सुना। Now, when she heard the word, जब उसने वचन को सुना the scripture says she came in the press. तो ऐसा हुआ कि वो उसके उपस्थिति में आई, Yeah, she came in the crowd वो उस भीड़ में आई and she touched the hem of his garment. और उसने यीशु के वस्त्र के छोर को छू लिया। Now the word declares before she touched, she said. वचन कहता है कि उसके छूने से पहले उसने कहा, उसने बोला। One translation says she said and she kept on saying, kept on saying, kept on saying, kept on saying. और एक ट्रांसलेशन ऐसा कहता है कि उसने बोला और वो बोलती रही, लगातार बोलती रही और बोलती रही। The moment she said it, और जिस क्षण उसने बोला, she touched the hem of his garment उसने उसके वस्त्र को छू लिया and she was healed of that plague. और उस बीमारी से वो चंगी हो गई। You know, the Lord told her, और आपको पता है पर यीशु ने इससे बात the Lord उससे didn't कहा, tell her, the Lord didn't tell her, see electricity flow from my body and healed you. और यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि इलेक्ट्रिसिटी मेरे शरीर से बही और उसने तुझे चंगा किया। Because the scripture says that Jesus felt power leaving him. वचन कहता है कि यीशु मसीह ने ये जाना कि उससे सामर्थ बह के बाहर निकली And the woman also felt power going into her body. और उस स्त्री ने भी उस सामर्थ को अनुभव किया उसके शरीर में। No, Jesus, the Lord didn't tell her that, see, power went out of me and healed you. यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि मेरे अंदर से सामर्थ गया और तुझे चंगा किया। The Lord said, your faith has made you whole. यीशु ने से कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। That means what faith she got when she heard about Jesus. She said it, she expressed it, she spoke it loudly. उसका विश्वास क्या था? उसने दिखाया, वो बोल रही थी, वो जोर से बोल रही थी, वो लगातार बोल रही थी। संतो, जब तक हम लोग बोलेंगे ना कुछ होने वाला नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। Saints, till the time we don't speak, nothing will happen. By faith we know that the worlds were framed by what? By the word of God. That means विश्वास God. से हम जानते हैं कि सृष्टि की रचना कैसे हुई? परमेश्वर के वचन के द्वारा। That means God had to speak it out to bring it forth. उसका मतलब है कि परमेश्वर का बोलना पड़ा इस सृष्टि की रचने के लिए। The word declares that the earth was without form and void. वचन कहता है कि ये जो संसार था वो बेडोल था, जो पृथ्वी थी वो बेडोल थी। You know, the Lord didn't call the angels, come and help me out, please. और परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बुलाया नहीं कि आओ मेरी सहायता करो। And he didn't tell them that, doesn't it look too dark over there? क्या तुझे ये पृथ्वी पर अंधेरा नहीं दिख रहा? ऐसा यीशु परमेश्वर ने कहा क्या स्वर्गदूतों से? Can anything happen to this earth? अगर परमेश्वर से कहता तो कुछ होता क्या इस पृथ्वी पर? No, he said, God declared the word and said, let there be light, and there was light. और लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर ने बोला और जैसे परमेश्वर ने बोला कि प्रकाश हो तो प्रकाश हुआ। Speak to your bank balance. अपने बैंक बैलेंस से आप बोलिए। Speak to your bank balance to top up. अपने बैंक बैलेंस से कहिए कि बढ़ जा। Listen, saints, your bank balance, my bank balance has intelligence. सुनिए, आपके और मेरे बैंक बैलेंस के पास में बुद्धि है।
The winds and the sea, they had intelligence to hear the word of the Lord. जो हवा है और जो समुद्र है उसके पास ये बुद्धि थी कि वो परमेश्वर की आवाज को सुने। The earth had intelligence to bring forth everything that God spoke to her. पृथ्वी के पास वो बुद्धि है, वो समझ है कि जो कुछ इसमें बोया गया वो उसको फलवत करेगी। Listen, God calls those things which are not as though they are. परमेश्वर ऐसी चीजों को बुलाता है जो नहीं है। In the name of Jesus, we यीशु as के a नाम church से। are calling out our lands, acres of lands. यीशु के नाम से हम चर्च के नाम ये घोषणा करते हैं, बुलाते हैं उस जमीन को कि प्रकट हो। See, right now when we are declaring, things are happening in the realms, in the spirit realm. जैसे हम अभी घोषणा कर रहे हैं तो आत्मिक स्तर पर ये चीजें हो रही है। The moment we started declaring it, the angels have already gone and surrounded that entire acres of land. और जैसे हम घोषणा कर रहे हैं तो स्वर्गदूत जाकर उस जगह को उसके चारों ओर वो खड़े हो रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। He calls those things which are not as though they are. वो ऐसी चीजों को बोलता है जो नहीं है। The word declares he called Abraham when he had no sons. परमेश्वर ने अब्राहम को अब्राम करके बुलाया जब उसकी कोई संतान नहीं थी। If you look at Genesis chapter 17, it says that I have made you a father of many nations. उत्पत्ति 17 में कहता है परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैंने तुझे बहुत से देशों का पिता करके बुलाया है। When Abraham saw his body unfit to bring forth a child, God was seeing nations in his body. जब अब्राहम परमेश्वर के पास है तो परमेश्वर उसकी देह में बहुत सारे देशों को देख रहे थे। The Lord didn't tell Abraham, I will make you a father of many nations. He said, I have already made you. परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि मैं तुझे बहुत सारे देशों का पिता बनाऊंगा, लेकिन all- परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे पिता देख रहा हूं कि तू बहुत सारे देशों का पिता है। The works of the Lord are finished from the days of old. परमेश्वर के काम पुराने समय में ही पूरे हो चुके हैं। See, we always think that we ask and then God does it. No, He has already done it. हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर से मांगते हैं और परमेश्वर करता है, नहीं, परमेश्वर ने पहले ही वो काम कर चुका है। वो Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. परमेश्वर, हमारे परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि जिसने हमें मसीह में सारे आशीषों से हमें आशीर्वादित किया है। He didn't choose us after we came on the earth. He chose us before the foundation of the world. हम पृथ्वी पर आने के बाद में उसने हमें नहीं चुना, लेकिन उत्पत्ति के पहले उसने हमें चुना है। He is the God who sees the end from the beginning. वो ये परमेश्वर है कि जो अंत को वो शुरुआत से ही देखता है। Hallelujah. हालेलुया। So we are just like Him. हम भी वैसे परमेश्वर के समान है। We got to call out things which are not as though they are. हमें भी ऐसी चीजों को बोलना है जो अभी हमें नहीं दिखती। Call out those $1 million in your account. वो करोड़ों पैसों को आप बोलिए जो आपके अकाउंट में अभी नहीं दिख रहे हैं। Call out that healing that you still need in your body. वो चंगाई को बोलिए जो आप आपके शरीर में नहीं देख पा रहे हो। Hallelujah. हालेलुया। The word declares that Abraham did not stagger at the promise of God through unbelief. वचन कहता है कि अब्राहम परमेश्वर के ऊपर विश्वास से वो डगमगाया नहीं, But he was strong in faith, लेकिन वो उसके विश्वास में मजबूत रहा, giving glory to God. परमेश्वर को महिमा देता रहा, Giving glory to God. परमेश्वर को महिमा देता रहा। Say, giving glory to God. कहिए परमेश्वर को महिमा देता रहा। One more time, giving glory to God. फिर से परमेश्वर को महिमा देता रहा। One more time, giving glory to God. परमेश्वर को वो महिमा देता रहा। What was he giving glory to God? वो क्या महिमा दे रहा था? That what he had promised, he is able to do it. कि उसने जो उससे वायदा किया है वो करने में वो सक्षम है। You know, when we give glory to God, जब हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, that shows that our faith is strong. वो दिखाता है कि हमारा विश्वास मजबूत है। So Abraham's name was changed from Abram to Abraham. तो परमेश्वर ने उसका नाम अब्राहम से अब्राहम किया। Abram means assumed father, one taken to be a father. तो अब्राहम का मतलब है कि एक पिता जो होने वाला है। But Abraham means father of nations. लेकिन अब्राहम का मतलब है कि देशों का पिता। God changed, it was, see listen, it was not Abram who changed his name. It was God who changed his name from Abram to Abraham. देखिए, अब्राहम का नाम अब्राहम ने खुद बदला नहीं, लेकिन अब्राहम का नाम अब्राहम परमेश्वर ने किया। So the husband and wife, they started calling each other by other name. तो उस समय जो पति और पत्नी थे वो एक दूसरे को परमेश्वर ने दिए हुए नाम से पुकारना शुरू किए। So can you imagine people coming knocking at Abraham's door and asking Sarah, Abram है क्या? आप सोच सकते हैं कि जो लोग थे वो अब्राहम के घर पे आके कह रहे होंगे कि अब्राहम है क्या? So Sarah may say to Abraham ने Abraham. तो सारा उससे कहते हो कि अब्राहम नहीं, अब्राहम। Some people must have scoffed at her. I said, Abraham बोल रही है अपने husband को। और बहुत लोग ऐसे खिल्ली उड़ाते होंगे कि अरे अपने पति को अब्राहम कह रही है वो। Listen, the reason why Sarah was calling
Abraham because not because she was calling, because God had called him Abraham. तो सारा अब्राहम को अब्राहम इसलिए नहीं बोल रही थी कि उसने खुद नाम बदला, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम का नाम अब्राहम किया, इसलिए सारा भी उसको अब्राहम करके बुलाती थी। When God looks at you and me, He sees the richest person on the face of the earth. वैसे ही परमेश्वर जब आपको और मुझे देखता है तो हमें इस संसार के सबसे अमीर लोगों में वो देखता है। He sees us, we are the one who are giving loans to the bank. वो देखता है कि हम लोग हैं जो बैंक को लोन देते हैं। We are giving loans to financial institutions. हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, बड़ी बड़ी कंपनियों को हम लोन देते हैं। Since we are the seed of Abraham, we are blessed and faithful Abraham. क्योंकि हम अब्राहम की संतान है, इसलिए हम आशीर्वादित है। See, Abraham materials are not alive right now. His sheep and oxen, everything is gone. तो अब्राहम के समय की जो चीजें हैं वो अभी नहीं है, इस समय यहाँ पर नहीं है। What is remaining of Abraham is the word that was given to him. लेकिन अब्राहम को जो वचन दिया गया था वो वचन अब यहाँ पर है। Hallelujah. Hallelujah. So the same blessing that was given to Abraham is given to you and to me. और जो आशीर्वाद अब्राहम को दिए गए थे वही आशीष आपको और मुझे दी गई है। Because the scripture says, if you are Christ, then are ye Abraham's seed and heirs according to the promise. अगर वचन कहता है कि अगर आप मसीह में हो तो आप अब्राहम की संतान हो, और अब्राहम की संतान के साथ में उसके वारिस भी हो। So, if you have a strong faith, you will give glory to God. अगर आपका विश्वास मजबूत है तो आप परमेश्वर को महिमा दोगे। Say, strong faith gives glory to God. कहिए, मजबूत विश्वास परमेश्वर का महिमा देता है। Say it again. Strong faith gives glory to God. कहिए, मजबूत विश्वास परमेश्वर को महिमा देता है। Hallelujah. हालेलुया। You remember the 10 lepers? वो 10 कोढ़ी आपको याद है? Luke chapter 17. लूका उसका 17वां अध्याय। All right. The scripture says there were 10 lepers and all 10 were healed. और वचन कहता है लूका उसका 17 में कि 10 कोढ़ी थी और 10 के 10 If we चंगे हो गए। start reading from verse 11. 11वें वचन से हम पढ़ेंगे। Okay, it says that there were 10 lepers and then all the 10 were cleansed. और 10 कोढ़ी थे जो वहां थे और 10 के 10 चंगे हो गए। But out of the 10, 9 went away, but only one came and gave glory. तो 10 में से 9 वापस गए, लेकिन केवल एक वापस आया परमेश्वर को महिमा देने के लिए। And Jesus spoke about him, and the Lord spoke about him and said that whether not 9, whether not 10, where the 9, were they not found to give glory to God. तो यीशु मसीह ने जब इकलौता जो वापस आए तो उससे कहा कि क्या तुम तेरे साथ के 9 लोग नहीं थे, तुम 10 लोग नहीं थे, वो क्या शुद्ध नहीं हुए? वो क्यों परमेश्वर को महिमा देने नहीं आए? Save this foreigner, only this foreigner. केवल ये परदेशी। And the Lord tells him, go thy way, thy faith has made thee whole. तू उठ कर चला जा क्योंकि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। No wonder Jesus linked the faith of the leper with glory. परमेश्वर ने उसके विश्वास को उसकी महिमा के साथ लिंक किया, जोड़ दिया। That means he was giving glory to God that my miracle is not yet complete. Every part of my body that I have lost is going to come back. उसका मतलब यह था कि वो परदेशी बोल रहा था कि मैं परमेश्वर को महिमा देने आ रहा हूं क्योंकि मेरा पूरा शरीर परमेश्वर ने चंगा कर दिया है, इसलिए वापस आ रहा हूं। All the 9 lepers, they went missing the physical part. जो बाकी के 9 कोढ़ी थे उनके शरीर का एक भाग वो मिस करके जा रहे थे। But the one who came and gave glory to God, his fingers grew back, his nose grew back, his toes grew back, every part of the body grew back. लेकिन जो इकलौता जो वापस कोढ़ी आया, उसके शरीर का वो हिस्सा जो कट चुका था, जो गायब हो चुका था, वो वापस परमेश्वर ने कर दिया। So faith will give glory to God. विश्वास परमेश्वर को महिमा देगा है। If you see a person giving glory to God, man, his faith is very strong. आप अगर देख रहे हो कि कोई मनुष्य परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं, उसका मतलब है कि उसका विश्वास मजबूत है। Abraham considered not his own body now dead. अब्राहम ने उसके शरीर का मरणास्थिति को नहीं देखा। And the word also declares that he was 100 years old. और वचन भी कहता है कि वो 100 साल का था। Neither did he consider his wife's womb dead. और उसने उसकी पत्नी के गर्भ के मरणहार दशा को भी नहीं देखा। He staggered not at the promise of God through unbelief. वो परमेश्वर के वचन पे उसके विश्वास से डगमगाया नहीं। But he was giving glory to God that what he had promised, he's able to perform. लेकिन वो परमेश्वर को महिमा देता रहा कि जो कुछ परमेश्वर करने में सक्षम है। Hallelujah. हालेलुया। Saints, if we don't exercise our faith, we are not going to get anything. अगर हम हमारे विश्वास का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। That's why speaking is important. इसलिए बोलना, घोषणा करना बहुत महत्वपूर्ण है। Because the word declares that we got to speak. क्योंकि वचन कहता है कि हमें बोलने की जरूरत है। Now if you look at 2 Corinthians chapter 4. अगर हम देखते हैं 2 कोरिन्थियों उसका 4था अध्याय। Are you enjoying this? क्या आप इसका आनंद ले रहे हो?
verse 13. वचन 13, दूसरा कोरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 13वां वचन। Mark this in your Bible, saints, I'm telling you. इसको आप आपकी बाइबल में हाईलाइट कर दीजिए। दूसरा कोरिन्थियों 4 उसका 13, इसलिए कि हमें वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं और इसीलिए बोलते हैं। Wow. Hallelujah. हालेलुया। सिर्फ विश्वास करने से फायदा नहीं है, बोलना जरूरी है. यू नीड टू स्पीक। We having the same spirit of faith. हमारे पास वही विश्वास का आत्मा है। That means Paul is saying that the faith that I have, he's telling the church, you have the same faith that I have. इसका मतलब पौलुस कह रहा है कि जो विश्वास मेरे पास है वो विश्वास तुम्हारे पास भी है। लेकिन मेरे में और तुम्हारे में फर्क क्या है कि तुम लोग you all are dumb and I'm not dumb. केवल अंतर यह है कि आप बोलते नहीं हो, मैं बोलता हूं। पॉल इतना बात किया, बोलता कि I speak in tongues more than you all. इतना ज्यादा बात किया। पौलुस कहता है कि तुम सबसे ज्यादा मैं अन्य भाषा में बात करता हूं। Say I have the life of God in me. कहिए मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन है। Say I have the life of God in me. मेरे पास परमेश्वर का जीवन है। I've got the word of God at work in me. परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में काम करता है। I have the life of God in me. मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन है। The life of God is repairing my body. परमेश्वर का वचन मेरे शरीर को सही कर रहा है। The same spirit that raised Jesus from the dead dwells in me. वही आत्मा जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो मेरे अंदर रहता है। The same spirit that raised Jesus from the dead dwells in me. वही आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों से जिलाया वो मेरे अंदर रहता है। The same spirit vitalizes my mortal body. वही आत्मा मेरे शरीर को जीवन देता है। Hallelujah. हालेलुया। All right, now next we see the centurion exercising his faith. अब हम उस शतपति को देखेंगे जो उसके विश्वास को काम में लाते हुए। Luke chapter 7. Now you remember I'm not reading the verses because saving time. मैं वचन इसलिए नहीं पढ़ रहा कि हम समय को थोड़ा बचा पाए। Please go home and do your homework. आप घर में जाइए, आपका होमवर्क कीजिए, आप उन वचनों को पढ़िए And make sure you do it well. और उसको अच्छे से आप पढ़िए। और होमवर्क यीशु के प्रेजेंस में लिख रहे हो तुम सब। हालेलुया। वहाँ पे चीटिंग भी नहीं हो सकता है। The Lord is so good and merciful. He will, the Lord always applaud for all of us. You know that? परमेश्वर हम सब के लिए तालियां बजाते हैं। He not only applaud but he also sings for us. The scripture says. वो केवल हमारे लिए तालियां नहीं बजाते लेकिन वो हमारे लिए गाते भी हैं। Hallelujah. हालेलुया। So Luke chapter 7 says that the centurion servant was sick. और वचन लूका उसका 7वां अध्याय में कहता है कि जो एक सूबेदार था उसका एक दास बीमार था। And he sends his servant. और वो उसके दास को यीशु के पास भेजता है। All right. And the centurion tells the Lord. और वो जो सूबेदार है वो मसीह से यीशु से कहता है that I'm not worthy that you should come under my roof. कि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर पर आए। Neither I felt myself worthy enough to come and meet you. और मेरी भी इतनी योग्यता नहीं कि मैं आपसे आके मुलाकात करूं। But then he tells the Lord, but just Lord, सिर्फ एक बात कर बस। Lord, just do one thing. He said, only do what? तू क्या कर? Saints, come on. I don't know. The same thing that you are feeling that I'm feeling over here. आपको जैसे महसूस हो रहा है मुझे भी वैसे महसूस हो I रहा feel है। like going on the housetop and dancing over there. मुझे लगा कि मैं घर के छत पर जाकर मैं डांस करूं। The Lord said, go on the rooftop and declare it. वचन कहता है कि अपने छतों पे जाकर घोषणा करो। Only speak the. केवल क्या बोलो? Only speak the. क्या बोलो? वचन को बोलो। Only speak the. क्या बोलो? वचन को बोलो। मंत्री का भाषा मत बोलो। बोलते कुछ करते वाले कुछ। जीसस वही बोलता है, वही करता है। Jesus speaks and he does the same thing. So so centurion is saying that speak the word, only the word. Don't speak anything. Don't speak your symptoms. Don't speak your bank balance. Speak the word only. उस सूबेदार ने कहा कि तू कुछ मत कर, केवल उस शब्द को बोल, केवल तेरे वचन को बोल। That particular verse, he said don't speak only, मतलब क्या है कि word के अलावा दूसरा कुछ बोलना ही नहीं है। That means you just need to speak the word.
The same word that God used to create the whole world and the galaxies and the universe is the same word that He has placed in your mouth and my mouth. वही वचन जिसके द्वारा परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, वही वचन आपके और मेरे मुखों के अंदर उसने दिया है. So He said, speak the word only and my servant shall be made whole. उसने कहा केवल तू तेरे मुख से वचन बोल और मेरा जो दास है वो चंगा हो जाएगा. You know what the Lord spoke about the centurion? और परमेश्वर यीशु मसीह ने उस सूबेदार के विषय में क्या कहा? He said, I have not found so great a faith. उसने कहा कि मैंने इतना बड़ा विश्वास नहीं देखा, Not even in Israel. इज़राइल में भी नहीं देखा. You know what the centurion said? उस सूबेदार ने क्या कहा? I am a man under authority. मैं ऐसा मनुष्य हूँ कि जो अधिकार के अंदर काम करता हूँ. I say to one, come. मैं किसी से कहता हूँ कि आ, उसकी जरूरत नहीं रहेगी कि क्या क्यों आओ. Come means he will come. अगर मैं उसको बोलता हूँ आ तो उसकी हिम्मत नहीं होगी कि मुझे नहीं बोले. अगर मैं उसको बोलता हूँ आ तो वो आएगा. Go means अगर मैं उसको जा बोलता हूँ point where है po. तो वो जाएगा. Po means go. तो वो जाएगा. Hallelujah. हालेलुया. I'm going to learn Tamil from Brother Lucas. Okay. So he says, when I tell my soldier to come, he comes. When I tell him to go, he goes. तो जब मैं मेरे सैनिकों से कहता हूँ कि तू आ तो आते हैं. जब मैं उनसे कहता हूँ जा तो वो जाते हैं. That means this man recognized the authority of Christ Jesus. उसका मतलब है कि उसने यीशु मसीह के अधिकार को पहचान लिया था. That's why he said, मैं मेरे सर्वेंट को बोल रहा हूँ आ और जाओ, आते और जाते. जब तू एक वर्ड भेजेगा ना वैसे, my servant will be made whole. इसलिए उसने कहा कि मैं जब मेरे सैनिकों से कहता हूँ आ और जा तो वैसे ही मैं तेरे अधिकार को जानता हूँ और तू बोलेगा तो मेरा दास चंगा हो जाएगा. The Lord speaks about him, says that I have not found such a great faith, not even in Israel. इसलिए यीशु ने कहा कि मैंने इतना बड़ा महान विश्वास इज़राइल में भी नहीं देखा. I have not found so great a faith, not even in Israel. मैंने इतना बड़ा इतना महान विश्वास इज़राइल में भी नहीं देखा. And you know, I read this portion so many times, but there was something that clicked. मैंने ये जो वचन है मैंने बहुत बार पढ़ा, लेकिन अब मैंने जब पढ़ा तो मुझे कुछ तो समझा उसमें से. Nowhere in Luke we see that the Lord telling him that go, your servant is made whole. परमेश्वर ने ये कहा कि जा तेरा सेवक है जो दास है वो चंगा हो गया No, है. he didn't say that. सॉरी, The Lord is nowhere in the scripture I read. वहां पर उसने ऐसा नहीं लिखा कि जा तेरा दास चंगा हुआ, ऐसा उसने नहीं कहा. No, but when the servant they went, they saw that the servant was already healed. लेकिन उसके जो सैनिक थे जब वो वापस गए तो उन्होंने पाया कि वो जो दास है वो चंगा हो गया है. Faith in Jesus' word had already made that person whole. यीशु मसीह पर उस मनुष्य को सुबह के विश्वास ने उस दास को चंगा कर दिया. So God has placed this word into our hands, into our mouth. परमेश्वर ने उसके वचन को हमारे हाथों में हमारे मुखों पे दिया है. You know, no wonder Moses told, the Lord told Joshua that the word of God shall not depart out of your, but you shall meditate. The meaning of the word meditate means to speak it out. परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि मेरे वचन को तेरे मुख से अलग मत होने दे और उस पर तू दिन रात मनन कर. The word manan means to speak it out day and night. मनन का मतलब है कि उसको दिन और रात तू बोलते जा. To mutter it day and night. उसको तू बोलते जा दिन और रात. Jesus said, you will have whatever you say. यीशु ने कहा कि जो कुछ तू बोलेगा वो तुझे मिलेगा. The Lord said, you will have whatever you. He didn't say whatever you will pray. He says whatever you say. यीशु ने ये नहीं कहा कि जो कुछ तू प्रार्थना करेगा वो तुझे मिलेगा, लेकिन उसने कहा कि जो कुछ तू बोलेगा वो तुझे मिलेगा. Whosoever shall say unto this mountain, जो कोई इस पहाड़ से कहेगा be thou removed and be thou cast into the sea, यहाँ से हट कर समुद्र में जाके गिर जा, and shall not doubt in his heart, और उसके मन में कोई शंका ना करेगा, but believe that what he said will come to pass, he will have whatever he said. तो जो कुछ उसने कहा है वो उसके लिए हो जाएगा. You can have faith in your heart with doubt in your mind. आपके पास में विश्वास हो सकता है लेकिन आपके मन में संदेह हो सकता है. Saints, if you have faith in your heart and if you have doubt in your mind, that faith will still work. अगर आपके पास में विश्वास है लेकिन आपके मन में संदेह है, वो विश्वास काम कर सकता है. Because Jesus never said faith, doubt in your mind, he said doubt in your heart.
उसने ये नहीं कहा कि मन में संदेह, लेकिन उसने कहा आपके दिल में संदेह। So whatsoever you need in your life, you got to start declaring it. जो कुछ आपको आपके जीवन में चाहिए, आपको उसकी घोषणा करना है। Hallelujah. हालेलुया। We declare that we have the life of God in me. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन है। I've got the Holy Spirit living in me. मेरे अंदर पवित्र आत्मा रहता है। I've got the wealth of God domiciled in me. परमेश्वर की समृद्धि मेरे अंदर रहती है। Hallelujah. हालेलुया। So we are exercising our faith. You know the reason why we are talking is because we are exercising. Put it to work. जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं विश्वास को काम में ला रहा हूँ, मैं उसका उपयोग कर रहा हूँ। Shall we all stand up क्या हम सब खड़े होंगे and start declaring? और हम घोषणा करेंगे? Hallelujah. हालेलुया। I want Brother Sam to, Brother Manoj to come on the keys. Afterwards, I'll tell you when to come. Ready to exercise? क्या हम उसको, हमारे विश्वास को काम में लाएंगे? Exercise करो थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए। We've been sitting from morning, right? सुबह से हम बैठे हुए हैं। आवाज आ गया? कट आवाज आया? Say, I'm a walking Bethlehem. कहिए कि मैं चलता हुआ बेथलेहम हूँ। Say, I'm a walking Bethlehem. कहिए मैं चलता हुआ बेथलेहम हूँ। 490 promises packaged in me. 490 आशीषें मेरे अंदर है। You'll tell me, ये 490 कहाँ से आ गए? Listen, the Bible, every word has a code. बाइबल का हर एक वचन एक कोड है। So the code for Bethlehem is 490 blessings. तो बाइबल में बेथलेहम का कोड है 490 आशीर्वाद। So say it with me, I'm a walking Bethlehem. कहिए कि मैं चलता हुआ बेथलेहम हूँ। 490 blessings packaged in me. 490 आशीषें मेरे अंदर पैकेज की हुई है। From this moment on, इस क्षण से say I'm a walking Bethlehem. कहिए मैं चलता हुआ बेथलेहम हूँ। I am a walking Bethlehem. मैं चलता हुआ बेथलेहम हूँ। 490 blessings 490 आशीषें packaged in me. मेरे अंदर है। From this moment on, इस क्षण से hallelujah. हालेलुया। Say, I don't attract curses. I don't attract curses. मैं श्रापों को आकर्षित नहीं करता। I don't attract evil. मैं दुष्ट को आकर्षित नहीं करता। I attract blessings. मैं आशीषों को आकर्षित करता हूँ। Say, I attract blessings. कहिए मैं आशीषों को आकर्षित करता हूँ। I attract blessings. मैं आशीषों को आकर्षित करता हूँ। I'm a child of God. मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। I'm a child of God. मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। I'm a favored child. मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। I'm a favored child. मैं परमेश्वर का अनुग्रह पाया हुआ पुत्र हूँ। I'm a favored child. मैं परमेश्वर का अनुग्रह पाया हुआ पुत्र हूँ। Say it with me, the anointing oil is on my head. कहिए कि अभिषेक का तेल मेरे ऊपर है। The anointing oil is on my head. अभिषेक का तेल मेरे ऊपर है। Oh my God, I sense the anointing very strong. Hallelujah. The anointing oil is on my head. अभिषेक का तेल मेरे ऊपर है। Listen, when the anointing oil is upon your head, you will have anointed thoughts. जब अभिषेक का तेल आपके ऊपर होता है तो आपके विचार अभिषिक्त होते हैं। Say, the anointing oil is on my head. कहिए अभिषेक का तेल मेरे ऊपर है। Keep your hands on your head and say, the anointing oil is on my head. अपने सिरों पर हाथ रखे, कहिए कि मेरे ऊपर अभिषेक का तेल है। My garments are always white. मेरे कपड़े हमेशा सफेद हैं। My garments are always white. मेरे कपड़े हमेशा सफेद हैं। My feet will never slip. मेरे पैर लड़खड़ाएंगे नहीं। My feet will never slip. मेरे पैर लड़खड़ाएंगे नहीं। I will never be injured. मैं कभी भी, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। I will never be injured. मुझे कभी भी चोट नहीं लगेगी। I am clothed with the armor of God. मैं परमेश्वर के वस्त्रों को धारण किए हुए हूँ। I am clothed with the armor of God. मैं परमेश्वर के हथियारों को धारण किए हुए हूँ। I am clothed with the armor of God. मैं परमेश्वर के हथियारों को धारण किए हुए हूँ। I put on the Lord Jesus Christ. मैंने मसीह को पहन लिया है। I put on the Lord Jesus Christ. मैंने मसीह को पहन लिया है। I have the grace of God in my spirit. मेरे आत्मा में परमेश्वर का अनुग्रह है। I have the grace of God in my spirit. मेरे अंदर परमेश्वर का अनुग्रह है। My eyes are open to revelations. मेरे आंखें प्रकाशन की ओर खुल चुकी है। Say, my eyes are open to revelations. मेरी आंखें प्रकाशन के लिए खुल चुकी है। My hands labor and are blessed.
मेरे हाथ काम करते हैं और वो आशीर्वादित है। My hands labor and are blessed. मेरे हाथ काम करते हैं और वो आशीर्वादित है। My bones are strong. मेरी हड्डियां मजबूत है। Say, my bones are strong. कहिए मेरी हड्डियां मजबूत My है। bones are strong. मेरी हड्डियां मजबूत है। My blood is pure. मेरा लहू पवित्र है। My blood is pure. मेरा लहू पवित्र है। My blood is pure. मेरा लहू पवित्र है। My blood is very, very pure. मेरा लहू शुद्ध है। My tongue is a healthy tongue. मेरी जीभ अच्छी जीभ है। My tongue is a healthy tongue. मेरी जीभ अच्छी जीभ है। My tongue is a healthy tongue. मेरी जीभ अच्छी जीभ है। My tongue is a healthy tongue. मेरी जीभ अच्छी जीभ है। Wherever I go, I'm a blessing. मैं जहाँ कहीं जाता हूँ मैं आशीष हूँ। Wherever I go, I'm a blessing. मैं जहाँ कहीं जाता हूँ मैं वहाँ एक आशीष हूँ। My testimony is getting stronger. मेरी गवाहियाँ बढ़ रही है। Say, my testimony is getting stronger. कहीं मेरी गवाहियाँ मजबूती से बढ़ रही है। One more time, my testimony is getting stronger. मेरी गवाहियाँ मजबूती से बढ़ रही है। I walk in divine health. मैं दैवीय आरोग्य में चलता हूँ। I walk in divine health. मैं दैवीय आरोग्य में चलता हूँ। I will never be sick another day in my life. मैं कभी भी बीमार नहीं होऊंगा। Say, I will never be sick another day in my life. कहिए मैं कभी भी बीमार नहीं होऊंगा। I will never, 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 never be sick another day in my life. मैं कभी भी बीमार नहीं होऊंगा मेरे जीवन में। Say it again. I will never, 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 never be sick another day in my life. फिर से कहिए कि मैं कभी भी बीमार नहीं होऊंगा मेरे जीवन में। Hallelujah. हालेलुया। I refuse poverty. मैं गरीबी को नकारता हूँ। Say, I refuse poverty. कहिए मैं गरीबी को नकारता हूँ। The anointing of prosperity is upon me. जो समृद्धि का अभिषेक है वो मेरे ऊपर है। The anointing of prosperity is upon me. समृद्धि का अभिषेक मेरे ऊपर है। I'm a financial deliverer of my home. मैं मेरे घर में आर्थिक आशीर्वादों को लाने वाला हूँ। I'm a financial deliverer of my home. मैं मेरे घर में आर्थिक आशीर्वादों को लाने वाला हूँ। Wherever I go, the environment changes. मैं जहाँ कहीं जाता हूँ वातावरण बदल जाता है। Wherever I go, the environment changes. जहाँ कहीं मैं जाता हूँ वातावरण बदल जाता है। Wherever I go, the environment changes. जहाँ कहीं मैं जाता हूँ वातावरण वहाँ बदल जाता है। I will live longer than my enemies anticipated. मैं मेरे जो शत्रु है जो कल्पना करते हैं उससे ज्यादा मैं जीऊंगा। I will live longer than my enemies anticipated. जितने मैं शत्रु कल्पना करते हैं उससे कहीं ज्यादा मैं जीऊंगा। Money is coming to me from everywhere. पैसा हर एक जगह से मेरे पास आ रहा है। Say, money is coming to me from everywhere. कहिए पैसा हर एक जगह से मेरे पास आ रहा है। Say, money is coming to me from everywhere. कहिए पैसा हर एक जगह से मेरे पास आ रहा है। Talk to money and say, money, look here, I'm here. पैसे से कहिए पैसा मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर आ। Money is coming to me from everywhere. पैसा हर एक दिशा से मेरे पास आ रहा है। Money is coming to me from all the currencies. पैसा हर एक करेंसीज में मेरे पास आ रहा है। Money is coming to me from different currencies. पैसा हर एक करेंसी में मेरे पास आ रहा है। The dollars are coming. डॉलर्स आ रहे The हैं। pounds are coming. पाउंड्स आ रहे हैं। The yens are coming. येन्स आ रहे हैं। All the currencies in the world are coming. हर एक इस संसार के हर एक करेंसी मेरे पास आ रही है। In the name of Jesus. यीशु के नाम से My generation is rising up. My generation is rising up. मेरी पीढ़ी खड़ी हो रही है। My generation is rising up. मेरी पीढ़ी खड़ी हो रही है। My generation is rising मेरी up. पीढ़ी खड़ी हो रही है। My generation is filled with royalty. मेरी पीढ़ी राजकीय आशीषों से परिपूर्ण है। My generation is filled with royalty. मेरी पीढ़ी राजकीय आशीषों से पूरी तरह से भरी हुई है। I walk in priesthood. मैं याजकीय पद में चल रहा हूँ। I walk in the prophetic. मैं भविष्यवाणी के वरदान में चल रहा हूँ। I hear the voice of God. मैं परमेश्वर की वाणी को सुनता हूँ। I know the voice of God. मैं परमेश्वर की वाणी को जानता हूँ। I can discern the voice of God. मैं परमेश्वर की वाणी को समझता हूँ। My decisions are wise decisions. मेरे जो निर्णय है वो बुद्धि के निर्णय है। My decisions are wise decisions. मेरे निर्णय बुद्धि के निर्णय है। I work with diligence. मैं अच्छे भलाई से चलता हूँ। I work with diligence. मैं भलाई से चलता हूँ। I have the favor of man. I have the favor of man. मेरे ऊपर लोगों की कृपा है। I have the favor of God. मेरे पास परमेश्वर की कृपा है। I have the favor of God. मेरे पास परमेश्वर की कृपा है। I'm growing into maturity. मैं सयाना बन रहा हूँ। Say, I'm growing into maturity. मैं सयाना बन रहा हूँ। I'm growing in wisdom.
मैं बुद्धि में बढ़ रहा हूँ, growing in wisdom. मैं बुद्धि में बढ़ रहा हूँ, I'm moving upward and forward. मैं आगे और बढ़ रहा हूँ, I'm moving upward and forward. मैं आगे और ऊंचाई पे बढ़ रहा हूँ। I have speed on my feet. मेरे पैरों में तेजी है, I have speed on my feet. मेरे पैरों में तेजी है, I have blessings on my hand. मेरे हाथों में आशीष है। No one can stop my progress. मेरे प्रोग्रेस को कोई भी रोक नहीं सकता। I am the hope of my generation. मैं मेरी पीढ़ी की आशा हूँ, I am the hope of my generation. मैं मेरी पीढ़ी की आशा हूँ। The Lord has placed a crown on my head. परमेश्वर ने उसके तेल को मेरे ऊपर रखा है, The Lord has placed a crown on my head. परमेश्वर ने उसके मुकुट को मेरे ऊपर रखा है। My glory is increasing. मेरी महिमा बढ़ रही है, My glory is increasing. मेरी महिमा बढ़ रही My है, glory is increasing. मेरी महिमा बढ़ रही है। When people see me, लोग मुझे देख रहे हैं, when people see me, they can see the living Christ. जब लोग मुझे देखते हैं वो मेरे अंदर मसीह को देखते हैं। When people see me, they see the living Christ. जब लोग मुझे देखते हैं तो वो जीते मसीह को देखते हैं। I am a destiny helper. मैं लोगों को मदद करने वाला हूँ, I am a destiny helper. मैं लोगों को मदद करने वाला I हूँ, am a giver. मैं देने वाला हूँ, I am a giver. मैं देने वाला हूँ, I am a lover of God. मैं परमेश्वर से प्रेम करने वाला I am हूँ, a lover of God. मैं परमेश्वर से प्रेम करने वाला I am हूँ, a God catcher. I am a God catcher. मैं परमेश्वर को पकड़ने वाला हूँ, I am protected every day. मैं हर एक दिन सुरक्षित हूँ, I am protected every मैं day. रोज सुरक्षित हूँ, I am heavily protected. मैं बहुत आयत से सुरक्षित हूँ, I am heavily defended. मैं बहुत आयत से सुरक्षित हूँ, I am heavily guarded. मैं बहुत आयत से सुरक्षित हूँ। The hand of God is strong upon my life. परमेश्वर का हाथ बहुत गहराई से मेरे ऊपर है। I refuse to fear. मैं डर को नकारता The हूँ। devil is under my feet. शैतान मेरे पैरों के नीचे है। I walk in the power of God. मैं परमेश्वर के सामर्थ में चलता हूँ। Every part of my body is perfect. मेरे शरीर का हर एक भाग परिपूर्ण है। Every part of my body is perfect. मेरे शरीर का हर एक भाग परिपूर्ण है। My liver is perfect. मेरा लीवर परिपूर्ण है। My pancreas is perfect. मेरे पैनक्रियास परिपूर्ण है। My kidneys are perfect. मेरे किडनीज परिपूर्ण है। My brain is perfect. मेरी बुद्धि परिपूर्ण है। My eyes are perfect. मेरी आंखें परिपूर्ण है। My blood is perfect. मेरा लहू परिपूर्ण है। My blood pressure is perfect. मेरा बीपी परिपूर्ण है। My oxygen level is perfect. मेरा ऑक्सीजन लेवल परिपूर्ण I है। refuse to be sick. मैं नकारता हूँ बीमार होने को। I will never enter a hospital again. मैं हॉस्पिटल में कभी भी नहीं जाऊंगा। I will never enter a hospital again. मैं हॉस्पिटल में कभी भी नहीं जाऊंगा। My bloodline will never see divorce. मेरे लहू से जुड़े हुए सब लोग Say कभी it. भी डिवोर्स को नहीं देखेंगे। Say it again. My bloodline will never see divorce. मुझसे जुड़े हुए मेरे रक्त के लोग कभी भी डिवोर्स को नहीं देखेंगे। I will never bury my children. मैं मेरे बच्चों को कभी भी दफनाऊंगा नहीं। I will never bury my children. मैं मेरे बच्चों को कभी भी नहीं दफनाऊंगा। I will never bury my children. मैं मेरे बच्चों को कभी भी नहीं दफनाऊंगा। Never, 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 never. कभी भी मेरे बच्चों को मैं नहीं दफनाऊंगा। I will never bury my children. मैं मेरे बच्चों को कभी भी नहीं दफनाऊंगा। My children are blessed. मेरे बच्चे आशीषित हैं। My children are blessed. मेरे बच्चे आशीषित हैं। My children are champions. मेरे बच्चे चैंपियंस हैं। My child is a champion child. मेरे बच्चे विजेता हैं। My child is a champion मेरे child. बच्चे विजेता हैं। If you are holding a child, lay your hands on that child and say, my child is a champion child. आपके बच्चों को अगर आप पकड़ के हो तो कहिए मेरे बच्चे विजेता हैं। My child is a super genius. मेरे बच्चे सुपर जीनियस हैं। My child is a champion child. मेरा बच्चा चैंपियन है। I'm holding a champion. मैं चैंपियन को पकड़ के I'm हूँ। holding a champion. मैं चैंपियन को पकड़ रखे हूँ। I'm holding a champion. मैं चैंपियन को पकड़ के रखा हूँ। My champion is taking the whole world for Jesus. मेरा चैंपियन यीशु के लिए इस संसार को जीत रहा है। I am blessed with all spiritual blessings. मैं आशीषित हूँ हर एक आत्मिक आशीषों से। I am accepted in the beloved. मैं प्रभु के लोगों में स्वीकारा गया हूँ। I am accepted in the beloved. प्रभु के लोगों में मैं स्वीकारा गया हूँ। Hallelujah. हालेलुया। My eyes of understanding are flooded with light. मेरे समझ की आंखें प्रकाशित हुई है। My eyes of understanding are flooded with light. मेरी समझ की आंखें प्रकाशित हुई है। No corrupt communication proceeds out of my mouth. कोई भी भ्रष्ट बातें मेरे मुख से नहीं निकलेगी। No corrupt communication proceeds out of my mouth. कोई भी भ्रष्ट बात मेरे मुख से नहीं निकलेगी। I speak words of edification and comfort. मैं उन्नति की बातों को बोलूंगा। I speak words of edification and comfort. मैं उन्नति की और प्रोत्साहन की बातों को मेरे मुख से बोलूंगा। I'm a follower of God.
मैं परमेश्वर के पीछे चलने वाला हूँ। I'm a follower of God. मैं परमेश्वर के पीछे चलने वाला हूँ। I do not get drunk with wine, मैं वाइन से मतवाला नहीं होता, but I'm filled with the Holy Spirit. लेकिन मैं परमेश्वर की आत्मा से भर जाता हूँ। I walk in the power of God. मैं परमेश्वर की सामर्थ में चलता हूँ। I walk in the grace of God. मैं परमेश्वर के अनुग्रह में चलता हूँ। I walk in the word of God. मैं परमेश्वर के वचन पर चलता My हूँ। life is for the glory of God. मेरा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए है। I am the head and not the tail. मैं मस्तक हूँ, मैं पूंछ नहीं हूँ। I am always above and I will never be beneath. मैं हमेशा आगे हूँ, मैं पीछे कभी भी नहीं रहूंगा। I am always above and I will never be beneath. मैं हमेशा ऊपर रहूंगा, मैं कभी नीचे नहीं रहूंगा। I take the saving and the healing power of the gospel to the ends of the earth. मैं परमेश्वर के सुसमाचार को संसार के अंत तक लेकर जाऊंगा। I am called of God. मैं परमेश्वर का बुलाया गया हूँ। I am justified by God. मैं परमेश्वर के द्वारा निर्दोष ठहरा I am हूँ। glorified by God. परमेश्वर के द्वारा मुझे महिमा मिली है। Nothing can separate me from the love of God. कोई भी चीज मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। Nothing can separate me from the love of God. कोई भी चीज मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। I abhor evil. I do not. I'm away from evil. मैं दुष्ट से अलग हूँ। I cleave to that which is good. मैं उस जो अच्छा है उसको मैं पकड़े रहता हूँ। I'm not slothful in business. मैं मेरे कामों में आलसी नहीं हूँ। I'm not slothful in business. मैं कामों में, मैं बिजनेस में आलसी नहीं हूँ। I'm fervent in the spirit. लेकिन मैं आत्मा में उत्तेजित हूँ। Say, I'm fervent in the spirit. कहिए मैं आत्मा में उत्तेजित हूँ। I'm fervent in the मैं spirit. आत्मा में उत्तेजित हूँ। I'm fervent in the मैं spirit. आत्मा में उत्तेजित हूँ। I rejoice in hope. मैं आशा में आनंद करता हूँ। I rejoice in hope. मैं आशा में आनंद करता हूँ। I'm patient in tribulation. मैं मेरे सताव में मैं आनंद करता हूँ। I give in to hospitality. मैं लोगों को हॉस्पिटैलिटी में विश्वास करता हूँ। All things are mine. सब चीज मेरी है। Say, all things are mine. हर एक चीज मेरी है। All things are mine. हर एक चीज मेरी है। Listen, if you're going to say it, it will come to you. अगर Listen, आप कहोगे तो आपके पास आएगी। if you say it, it will come to you. If you don't say it, अगर it आप will not कहोगे come. तो वो आएगी, आप नहीं कहोगे तो नहीं आएगी। Say, all things are mine. कहिए सब मेरे है। All things are mine. हर एक चीज मेरी है। All things are mine. हर एक चीज मेरी है। All things are mine. हर एक चीज मेरी All है। things are mine. हर एक चीज मेरी है। All things are mine. हर एक चीज मेरी Say, है। all things are कहिए mine. हर एक चीज मेरी है। I glory in the Lord. मैं परमेश्वर में महिमा को पाता हूँ। I'm a king. मैं राजा हूँ। Say, I'm a king. कहिए मैं राजा हूँ। I'm a king. कहिए मैं राजा हूँ। I'm a king. मैं राजा हूँ। I declare decree. मैं घोषणा करता And हूँ it comes to pass. और वो ऐसा होता है। I'm a priest. मैं याजक हूँ। I'm steadfast. मैं यत्न से धरे रहता हूँ। I always abound in the work of the Lord. मैं हमेशा परमेश्वर के काम में बहुतायत से देता हूँ। My labor is not in vain in the Lord. My labor is not in vain in the Lord. मेरे काम प्रभु में बिना किसी फल के नहीं है। I shall not die, मैं मरूंगा नहीं, but I shall live लेकिन मैं जीऊंगा and declare the works of the Lord. और परमेश्वर के कामों की घोषणा करूंगा। I shall not die, मैं मरूंगा नहीं, but live लेकिन मैं जीऊंगा and declare the works of the Lord. और परमेश्वर के कामों की घोषणा करूंगा। I am the seed of Abraham. मैं अब्राहम की संतान हूँ। I am the seed of मैं Abraham. अब्राहम की संतान हूँ। I will not die early. मैं समय से पहले नहीं मरूंगा। I will not die early. मैं समय से पहले नहीं मरूंगा। I will live a long and a healthy life. मैं लंबा जीवन जीऊंगा। I'll fulfill the call of God upon my life. मैं परमेश्वर की जो बुलाहट है मेरे ऊपर, मैं उसको पूरा करूंगा। I will fulfill the call of God upon my life. मैं परमेश्वर की बुलाहट को मेरे जीवन में पूरा करूंगा। I'll fulfill the call of God upon my life. मैं परमेश्वर की बुलाहट को मेरे जीवन में पूरा करूंगा। I am not broken, मैं टूटा हुआ नहीं हूँ, but I am chosen. लेकिन मैं चुना हुआ हूँ। I am not broken, मैं टूटा हुआ नहीं but I हूँ, am chosen. लेकिन मैं चुना हुआ हूँ। I declare that doors are opening for me. मैं घोषणा करता हूँ कि दरवाजे मेरे लिए खुल रहे हैं। I call this day blessed मैं इस दिन को आशीर्वादित घोषित करता हूँ। and overflowing with divine appointments. मैं डिवाइन अपॉइंटमेंट्स के बहुतायत को देखता हूँ। I have the mind of Christ. मेरे पास परमेश्वर का मन I है। have the mind of Christ. मेरे पास परमेश्वर का मन है And therefore I think clearly. और इसलिए मैं सही से सोच सकता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Every cell in my body हर एक सेल मेरे शरीर का aligns with the word of God. परमेश्वर के वचन से एक हो जाता है। Every cell in my body हर एक सेल मेरे शरीर का aligns with the word of God. परमेश्वर के वचन के साथ में एक हो जाता है। I declare that I am a lender and not a borrower. मैं घोषणा करता हूँ कि मैं देने वाला हूँ, मैं Say, मांगने वाला नहीं। I declare that I am not a lender but I am a borrower. I am not a borrower but I am a lender.
मैं घोषणा करता हूँ कि मैं देने वाला हूँ, मैं लेने वाला नहीं हूँ। I am a lender and not a borrower. मैं देने वाला हूँ, मैं लेने वाला नहीं हूँ। I am a lender and not a borrower. मैं देने वाला हूँ, मैं लेने वाला नहीं हूँ। I declare that I operate in the overflow मैं घोषणा करता हूँ कि मैं बहुतायत में काम करने वाला हूँ, so I can bless others. कि जिसके द्वारा मैं बाकी लोगों को आशीषित करूँ। My friends are blessed because of me. मेरे दोस्त मेरे कारण आशीषित है। My colleagues are blessed because of me. मेरे साथ काम करने वाले लोग मेरे कारण आशीषित है। My company is blessed because of me. मेरी कंपनी मेरे कारण आशीषित है, Because I carry a different atmosphere. क्योंकि मैं अलग वातावरण को लेकर चलता हूँ। Because wherever I go, क्योंकि जहाँ कहीं मैं जाता हूँ the environment changes. वातावरण बदल जाता है। Hallelujah. हालेलुया। Brother Victor, wherever you go, wherever, भाई विक्टर, कहाँ जहाँ कहीं आप जाओगे you will be called as environment changer. आप वातावरण को बदलने वाले कहे जाओगे। Brother Victor, I'm talking to you. The Lord is talking to you. भाई विक्टर, परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। You will be known by this name, environment changer. आप इस नाम से जाने जाओगे कि वातावरण को बदलने वाला। Hallelujah. हालेलुया। The Lord again tells me he's going to play around 7-8 instruments. Zion is going to play 7-8 instruments. जायन 7 से 8 इंस्ट्रूमेंट्स बजाएगा। Hallelujah. हालेलुया। He's going to play 7-8 instruments. 7 से 8 इंस्ट्रूमेंट्स को बजाएगा। A worshipper of the Lord. Hallelujah. उसकी आराधना करने वाला। My God. Don't you sense the anointing? Hallelujah. Judah is saying he wants to play. Judah, come. Play Yeshua. Play Yeshua. Thank you. Thank you, Brother Manoj. Thank you. With the hands uplifted, अपने हाथों को ऊंचा करेंगे। did we exercise our faith? Yes or no? क्या हमने हमारे विश्वास को काम में लाया? We got to do it every day. हमें ये रोज करना है। Let it become a lifestyle. ये हमारे लिए एक जीवन शैली बन जाए। We speak the word of God and get results. हम परमेश्वर का वचन बोलते हैं और हमको उसके रिजल्ट दिखते हैं। Hallelujah. Just lift your hands to the Lord. हमारे हाथों का हम ऊंचा करेंगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। With your hands uplifted.
Last time, Yeshua. Hallelujah. Thank you, Jesus. I'd like to call upon Pastor. हालेलुया। सब लोग आशीर्वादित हुए। हम सब खड़े हो जाएंगे, आखिरी गीत गाएंगे। आखिरी गीत मेरे यीशु है, तू ले रहा। ओके। कितना लोग चाहते हैं कि हम लोग अपना खुद का कलीसिया में जाए? हालेलुया। प्रभु ने हमारा सुन लिया, हम बहुत जल्दी जा रहे हैं। हालेलुया। और हर रविवार को ऐसा उपवास प्रार्थना करने के लिए कितना लोग तैयार है? प्रभु की उपस्थिति में ऐसा रहेंगे तो हमारा जीवन अलग लेवल पे चला जाएगा। हालेलुया। इसको हमको आदत बनाना है। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में कितना अच्छा लगता है ना? दुनिया में जाके क्या है, शोरगुल है, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। तो हमको बहुत जल्दी अपने घर पे प्रभु लेके जाने वाला है ना? ऐसा जगह पे जहां पर किसी का तकरार नहीं रहेगा, किसी का ये नहीं रहेगा, वहां पर हमेशा हम लोग बने रहेंगे प्रभु की उपस्थिति में। आमीन। यस। Thank you, Jesus. हम सब खड़े हैं ऑलरेडी। जो खड़े नहीं है खड़े हो जाएंगे। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। चांद सूरज की प्रश्न हम नहीं करते, आगे नहीं बढ़ते। रिस्टार्ट करना पड़ेगा। हमारे ब्रदर को सही कॉर्ड बता रहे। हालेलुया। जिंदा खुदा है हमारा, 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 जिंदा खुदा है हमारा। चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते। चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। खुशखबरी खुशखबरी फैलाएंगे, रूह में बढ़ते जाएंगे, खोए सब इंसानों को पास यीशु के लाएंगे, खोए सब इंसानों को पास यीशु के लाएंगे, पास यीशु के लाएंगे। शैतानों के तूफानों से हम नहीं डरते, शैतानों के तूफानों से हम नहीं डरते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा,
सिताइश होती है, रूह की बारिश होती है। जब सिताइश होती है, रूह की बारिश होती है। यीशु की हुजूरी में रूह की जुम्बिश होती है। यीशु की हुजूरी में रूह की जुम्बिश होती है। तेरी कुव्वत से खाली हम नहीं रहते, तेरी कुव्वत से खाली हम नहीं रहते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, यीशु के लहू की। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ हमेशा रहेगा और पूरी कलीसिया कहेगी आमीन। एक दूसरे से मिलिए और प्रीति